ایک جانب 95 ارب ڈالر کی فورن لونز، دوسری جانب 20 ارب ڈالر سالانہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جب ایک کرنسی کو فکس کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا حکم ہے اور وہ رک جائے گی، یا کوئی فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے کہ میری کرنسی 100 روپے پہ رک جائے۔ اس کو روکنے کے لیے ڈالرز جھونکنے پڑتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ڈالرز کو پھونکا جاتا ہے، اور جناب اسپیکر ڈالرز پھونکے گئے۔ معیشت میں استحکام آ گیا۔ پیسے بچانے کے لیے ہم نے جو فیصلے کیے کوئی اور نہ کر پایا تھا۔ تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر سے کم کر کے 2 ارب ڈالر تک لے آئے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ گزشتہ دور میں کرنسی کی قدر روکنے اور بجلی و گیس کی قیمتیں روکنے کے لیے ڈالر پھونکے گئے۔ اقدامات ٹھیک نہ کیے تو ہم بھی ناکام ہو جائیں گے۔ رضا باقر نے پاکستان کی خاطر IMF کو چھوڑا۔ ہمیں تنقید نہیں، فخر ہونا چاہیے۔ حکومتی اقدامات سے 2 دنوں میں قیمتوں میں کمی آئے گی۔ عوام یوٹیلیٹی سٹورز پر جائیں اور مستفید ہوں۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا مشورہ۔ اگلے چند ماہ میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت 2000 یوٹیلیٹی سٹورز کھولے جائیں گے۔ رمضان سے پہلے راشن کارڈ کا اجرا کریں گے۔ غریب افراد کو 19 اشیاء 25% رعایتی نرخوں پر ملیں گی۔ وزیر خزانہ کا مشکور ہوں جنہوں نے ایک ایسی تصویر اکانومی کی دکھائی ہے جو پاکستان کے عوام کے نالج میں نہیں ہے، اور جو اصل مسئلہ تھا آٹے اور چینی کا اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں۔ کیا یہ مافیا وہی لوگ نہیں ہیں جو وزیر اعظم کے اخراجات اٹھاتے ہیں؟ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں، پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہ 1 جنوری سے آج تک 60 ارب کا ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کوئی جگہ نہ ہوگی۔ مشیر خزانہ نے معیشت کی وہ تصویر دکھائی جو کسی نے نہیں دیکھی۔ شاہد خاقان عباسی کی جوابی تقریر۔ آٹا 40 سے 70 اور چینی 53 سے 90 روپے ہو گئی۔ جنوری سے اب تک 60 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ کیا یہ مافیاز وہی نہیں جو وزیر اعظم کے اخراجات اٹھاتے تھے؟ حقائق نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ عوام کو ملنے والا ریلیف سب نے دیکھ لیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز اور راشن کارڈ کوئی حل نہیں۔ سپلائی بڑھانے کی کوشش کریں۔ نوید قمر کا اظہار خیال۔ قیمتیں ان چیزوں کی بڑھ رہی ہیں جو اپنی پروڈکشن ہے۔ پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھانے کے دعوے دیگر خوابوں کی طرح ایک خواب ہی لگتا ہے۔ یہ بتائیں مہنگائی 3 سے 14% تک کیسے پہنچی؟ یوٹیلیٹی سٹور سے عوام کے لیے انوکھا ریلیف۔ چینی 2 اور گھی 5 روپے کلو مہنگا۔ کابینہ نے 10 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دی، مگر قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھیں گی۔ 68 روپے کلو ملنے والی چینی اب 70 روپے میں ملے گی۔ 170 روپے کلو والے گھی کی قیمت 175 روپے مقرر۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے کا ہی رہے گا۔ وزیر اعظم کا خصوصی ریلیف پیکج دیکھ کر عوام حیران۔ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں، ان میں کوئی ریلیف نہیں ہوا۔ کہنے کی حد تک تو ہوا ہے، لیکن ویسے جو عوام کو ملنا چاہیے تھی کم ریٹ وائز چیز، وہ نہیں ہوئی۔ قیمتیں تو کم ہوئی ہی نہیں ہیں۔ اگر کم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ریلیف ملنا چاہیے۔ ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے، تو یہ بھی اچھا ہے کہ ایک بندے کو آٹا، چینی، گھی یہ بھی سستا ملے تو ایک اچھی بات ہے۔ غریبوں کے پیسے پر پلنے والے آج حکومت میں کفیل ڈھونڈ رہے ہیں۔ مافیا کے سرغنہ لندن میں ہیں۔ خواجہ آصف وہاں رابطہ کریں۔ فردوس عاشق عوان کا ٹویٹ۔ بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ابو اور پھپھو سے کہیں لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو نے مہنگائی کے سونامی سے نجات کی بات کی، اسی لیے بلاوے آتے رہتے ہیں۔ آصف زرداری سمیت اپوزیشن رہنماؤں کو بغیر الزام جیل میں رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنقید۔ مزید کہا کہ وفاقی حکومت کو IG سندھ کے لیے نام دیے، امید کرتے ہیں IG کو تبدیل کیا جائے گا۔
टैक्सों में छूट खत्म करो, IMF हुकाम अपने मुतालबे पर कायम। पार्लियामेंट हाउस में कायमा कमेटी खजाना से मुलाकात में कहा, बिजली और गैस की सब्सिडी 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलीफ के नए प्रोग्राम मशवरे के बगैर न शुरू किए जाएं। नेपरा और ओगरा को मुकम्मल खुद मुख्तारी देना लाजिम है। कराची सर्कुलर रेलवे पर तजावजात 1 माह में हटाओ, ट्रेन 3 माह में ऑपरेशनल करो। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। ML1 मंसूबा भी 2 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर प्लानिंग असद उमर की कराची सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, ये तो ना करने वाली बात हुई। सिंध हुकूमत पर छोड़ा तो KCR नहीं चल सकेगी। समात 21 फरवरी तक मुलतवी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कही है कि हम चाहें तो हम रेलवे की ज़मीन बेचकर और रेलवे की बिल्डिंग बेचकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे है कि हम 5 साल से ज़्यादा लीज पर नहीं दे सकते, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने एक कमाल मेहरबानी की है कि हम रेलवे के हाल को बेहतर कर सकते हैं कि कराची और लाहौर की जायदादों को बेचकर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर और कराची में अराजी बेचकर रेलवे बेहतर करने की इजाजत दे दी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर रेलवे ने अदालत में कहा कि कराची की एक प्रॉपर्टी बेचने से ही मसाइल हल हो सकते हैं। अदालत उस्मा की शुक्रगुजार है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 12 दिन में हो गया। असद उमर बोले, मईशत बहाली और महंगाई के खात्मे के लिए काम सही समत में है, हालात बेहतर होंगे। इसहाक डार का घर नहीं तो घर के सामने पार्क सही। हुकूमत ने पनाहगाह लीगी रहनुमा के घर से खत्म करके सामने शिफ्ट कर दी। आरजी कंटेनर्स में 16 बेड्स और आरजी वॉशरूम बना दिया गया। अहले इलाका का इजहार नाराजगी, कहते हैं पार्क बच्चों और खवातीन के लिए है, जहां गैर मुतलका लोगों का रहना मुनासिब नहीं। मौलाना साहब 3.5 साल इंतजार करें और हुकूमत को काम करने दें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फजलुर रहमान को मशवरा, मुल्क मजीद किसी एहतजाज और धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब हर गली मोहल्ले में माफियाज बन चुके हैं, मगर महंगाई और आटा बहरान के जिम्मेदार सजा से बच नहीं सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ्तर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिलीफ पैकेज तकलीफ पैकेज कैसे बना, अपोजिशन और हुकूमत जब क्लश का शिकार क्यों हो रही है, इस बारे में बताएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में भी। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। विफाकी वजीर उमर अयूब के मिस्टर 10% कहते पर कौमी असम्बली में हंगामा हो गया। अपोजिशन अरकान ने उमर अयूब की सीट का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत करते रहे। शोर शराबे के बायस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को 10 मिनट का वक्फा करना पड़ा। विफाकी वजीर उमर अयूब के मिस्टर 10% कहने पर कौमी असम्बली में हंगामा हुआ। अपोजिशन अरकान ने उमर अयूब की सीट का घेराव कर लिया। अब आए दिन ऐसी हंगामा आराई कौमी असम्बली में जारी रहती है। उन्होंने एक बाहर से सदर मुमलिकत को बुलाया, ये एक लतीफ़ा है, उसको 10% कहते थे। वो 10% मिस्टर 10% बैठे हुए थे, तो बल्कि उनको बाहर वाले मुल्क ने बुलाया दौरे पे, वो लेके गए, जो बाहर लेके गए दौरे पे, मैंने तो नाम नहीं लिया। खत्म कर रहे हैं जनाब स्पीकर, मैंने तो नाम नहीं लिया। वो जनाब स्पीकर वो बाहर चले गए, वो बाहर गए दौरे पे, बात सुने, वो बाहर गए दौरे पे और वहां पे जब ढूंढते फिरते गए, वहां पे एक लीडर ने वहां मुख्तसर करें, अपनी बात को मुख्तसर करें और दूसरों को भी मौका दें कि जनाब स्पीकर, उनके लीडर ने कहा कि ये सामने ब्रिज देख लो। तो उस लीडर ने जब ब्रिज देखा, उसने कहा कौन सा ब्रिज, उसने कहा कौन सा ब्रिज, आगे से तो मौका दें पूरा। उसके लीडर ने कहा कौन सा ब्रिज। जी जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब स्पीकर, जी एहसन इकबाल साहब, जी जनाब एहसन इकबाल साहब।
नाज़रीन, कौमी असम्बली में उमर अयूब ने क्या कहा और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल आपने देखी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, हालिया सूरत हाल क्या है? क्या ये हंगामा आराई ख़त्म हुई? दोबारा कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के इजलास में 10 मिनट का वक्फा जो है वो कर दिया गया था, जब वफाकी वजीर उमर अयूब जो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नवीद कमर की तकरीर के बाद जब अपनी तकरीर कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने जब रिमार्क्स दिए, मिस्टर 10% का जिक्र जो है वो जब उन्होंने किया तो ऐवान में जो है वो हंगामा हुआ, जिसके पेश नज़र डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो है वो 10 मिनट के लिए जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया था। डिप्टी स्पीकर ने जो है वो अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत की और अपोजिशन अरकान ने जो है वो उमर अयूब का घेराव भी किया और नवीद कमर और आगा रफ़ीउल्लाह जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है वो उमर अयूब के पास पहुंच गए। पीपल्स पार्टी अरकान ने जो है वो एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। सूरत हाल को पीपल्स पार्टी अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। हुसैन अहमद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली के इजलास में अब ज़ातियात पर बात होती है, बहतान तराजी की जाती है, इल्ज़ाम तराशियां होती हैं। गुज़श्ता हुकूमत में बिजली की कीमत न बढ़ाना और कर्ज लेना महंगाई की वजूहात हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा इस मुल्क का बड़ा अलमिया है कि कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। फौज का बजट मुंजमद करने में जनरल बाजवा का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में ऐसे दौर आए जब मईशत की रफ्तार तेज हुई, लेकिन ये रफ्तार 3-4 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। रजा बाकिर ने पाकिस्तान के लिए IMF की नौकरी छोड़ दी। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी जानिए। एक जानिब 95 अरब डॉलर की फॉरेन लोन्स, दूसरी जानिब 20 अरब डॉलर सालाना करंट अकाउंट डेफिसिट। जब एक करेंसी को फिक्स किया जाता है तो वो ऐसे नहीं है कि किसी बादशाह का हुक्म है और वो रुक जाएगी, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, वो उसको हुक्म नहीं दे सकता है कि मेरी करेंसी 100 रुपए पे रुक जाए। उसको रोकने के लिए डॉलर्स झोंकने पड़ते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि अगर हमने इक़दामात सही नहीं लिए कि हम भी नाकाम हो जाएंगे। जब लोग सवाल उठाते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉलर्स भी ख़त्म हो चुके थे और कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं था। 2008 में जब हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई, और 2013 में जो हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई। तो ये ज़ेब नहीं देता कि वो लोग जो खुद जा चुके हों दूसरे को उसी चीज़ पे तनकीद करें। एक ख़तरा था हमें, वो करंट अकाउंट डेफिसिट का था, जो कि 20 अरब डॉलर साल पे जा पहुंचा था। आपको पता है कि ये जो 7 महीने गुजरे हैं वो 20 अरब डॉलर से कहां पे पहुंचा? 2 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर पे लाया गया। और ये जो अभी हमारा टारगेट है कि इस साल के आखिर तक ये 8 बिलियन से ज्यादा नहीं हो, लेकिन मैं आपके सामने यहां कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ये 8 बिलियन से कम होगा। जवाब तो आना ही था। चंद वज़रा को LNG से बड़ी तकलीफ है, ऐवान की कमेटी बना दें, मैं तैयार हूं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इंतजार कर रहा हूं फवाद चौधरी हमें कब चांद पर लेकर जाएंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, किसी वजीर की 1.5 साल में कारकर्दगी दिखा दें। सिर्फ शॉपिंग बैग्स खत्म हुए। पेशगोई की कि हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो पाकिस्तान का कर्जा दुगना हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना का मशकूर हूँ जिन्होंने एक ऐसी तस्वीर इकॉनमी की दिखाई है जो पाकिस्तान के अवाम के नॉलेज में नहीं है, और जो असल मसला था आटे और चीनी का, उसके बारे में कुछ फरमाया नहीं। तो हम अपने हलके में अवाम को यही बोलेंगे कि मूडीज़ की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, प्राइमरी सरप्लस खा लिया करें, वो दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इंतज़ार करें कि जब बाहर से लोग यहाँ आएंगे, कारोबार बढ़ेगा। तो हकीकत आज ये है कि 2018 में आटा मिल रहा था 40 रुपए का, आज 70 रुपए का।
चीनी थी 53 रुपए की, आज 90 रुपए की। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, इसका कोई जवाब है? मुझे खुशी इस बात की है कि इस पूरी कैबिनेट में एक वजीर ने काम किया है, जो खातून वजीर है क्लाइमेट चेंज की, जिन्होंने इस्लामाबाद से शॉपर बैग खत्म कर दी। फवाद साहब हमें चांद पर लेके जाएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। और मैं इनकी वजाहत करना चाहता हूं, वो इन्होंने 65 जो कहा था 55 रुपए का जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो 55 नहीं थे, 5500 था फी मिनट। वो इनसे सिफरे में 2 सिफरों में गलती हो गई। मेरे पुराने वाक़े में ये गलती कर जाते। पाकिस्तान के अवाम से 2 अरब रुपया योमिया लूटा जा रहा है, उसका जवाब वज़ीर ख़ज़ाना के पास है। 2 अरब रुपया योमिया पाकिस्तान के अवाम आटे और चीनी की मद में ज्यादा अदा कर रहे हैं। ये पैसा किसके पास जा रहा है? क्या हुकूमत ने इसका पता करने की कोशिश की है? अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो दुगना हो चुका होगा। कह दें कि नहीं? माशाल्लाह इतने इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे इस मुल्क के अंदर, क्या हर वजीर एक्सपर्ट है और सिर्फ अपने काम। वफाकी वजीर उमर अयूब के मिस्टर 10% कहने पर कौमी असम्बली में हंगामा आ रहा है। अपोजिशन अरकान ने उमर अयूब की सीट का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत करते रहे। शोर शराबे के बायस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को 10 मिनट का वक्फा करना पड़ा। उमर अयूब ने मिस्टर 10% कहा, जिस पर कौमी असम्बली में हंगामा हो गया। अपोजिशन अरकान ने उमर अयूब की सीट का घेराव कर लिया, जबकि इस दौरान में मुसलसल वफाकी वजीर बोलते रहे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। शोर शराबे के बायस डिप्टी स्पीकर 10 मिनट का वक्फा लेने पर मजबूर हो गए। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सब अफवाहें हैं। तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज की हाई कोर्ट से जमानत हुई तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरेआम फांसी इस्लाम, शरीयत और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आपके पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे कैबिनेट के मेंबर्स हैं जो कि करप्शन को डिफीट करना चाहते हैं हर तरह से। अब जो इकॉनमी जो हमें मिली थी जब इमरान खान साहब ने और उनके इत्यादियों ने गवर्नमेंट में आए थे, तो ऑलरेडी सिचुएशन बड़ी ख़राब थी। तमाम अफवाहें फैलाने वाले जो हैं वो शायद वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एक साफ क्लीन गवर्नमेंट हो जो कि करप्शन का फाइनली सद्देबाब करें। हमें तो फैसला वो करना है जो कानून में दर्ज है। कानून में इस किस्म का कोई ग्राउंड बनता नहीं है ECL में निकालने का। यही ग्राउंड है और यही ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, तो फिर उस पे कंसिडर करेगी कैबिनेट के सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। बात हो रही थी पब्लिक हैंगिंग की कि सरेआम किसी को फांसी दी जाए। इस पे 1994 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो ये कहता है कि सरेआम फांसी जो है वो शरीयत के भी खिलाफ है, यानी इस्लाम के खिलाफ है, और पाकिस्तान के आईन के खिलाफ है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि नवाज शरीफ की नहीं, उनकी तीमारदारी की बात करें। बरतानिया का दौरा गैर सियासी है, अपना इलाज कराने लंदन आया हूं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त सियासी जो एक थिएटर लगा है उस पर ज़्यादा डिस्कशन बेमानी है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है बिल्कुल इररेलेवेंट है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है और माशी अदम इस्तेकाम है, ये इसको किस तरह हल किया जाए। और इसका हल तभी मुमकिन है जब डिबेट हो, डिस्कशन हो और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक जगह बैठ के कम डिबेट तो करें। पाकिस्तान के जो इस वक्त जितने गंभीर मसाइल हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतने नहीं थे। इस वक्त तो मेरी तीमारदारी का मसला है। जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बीमार पुरसी के लिए आएंगे। ब्लैकबर्न की मारूफ लॉ फर्म की तरफ से ओवरसीज पंजाब कमीशन बरतानिया के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कमीशन से मुतल्लिक लोगों को आगाही देना था। तफसीलात राजा वाजिद की रिपोर्ट में।
ब्लैकबर्न की मारूफ लॉ फर्म की तरफ से ओवरसीज पंजाब कमीशन बरतानिया के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज हाजी मोहम्मद जुबैर ने तिलावत कलाम पाक से किया। तकरीब से खिताब करते हुए ओवरसीज पंजाब कमीशन के रुकन आसफ रशीद भट्ट और मलिक इमरान खलील ने ओवरसीज पंजाब कमीशन के अगराज और मकासद बयान किए। आसफ रशीद भट्ट का कहना था कि जब साइलिन अपनी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवाएंगे तो वो उस वक्त तक पोर्टल पर ही रहेंगी जब तक उनका अजाला नहीं हो जाता। ओवरसीज कमीशन के कमिश्नर भी काम कर रहे हैं, लाहौर में उनका ऑफिस भी है, और इसके साथ साथ आप ओवरसीज कमीशन पंजाब के हवाले से अगर मैं ये बताऊं कि आप ओवरसीज कमीशन पंजाब की पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कोई भी शिकायत दर्ज करें तो आपको उसका रिस्पांस भी मिलता है, और उतनी देर तक जितनी देर तक आपका ओवरसीज का केस हल नहीं होता उतनी देर तक वो पोर्टल पे केस रहता है। जहाँ पे भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी और समटाइम के लेडीज़ के इश्यूज होते हैं, वहाँ पे हमारी टीम है, इंशाल्लाह ताला वो हर जगह पहुँचेगी भी। कन्वीनर ओवरसीज पंजाब कमीशन बरतानिया सैयद तारक महमूद हसन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला केसेस में ताखीर का था, जिन्हें निपटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अलहदा से 3 जजेस मुकर्रर कर दिए गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं तो केस जब कोर्ट में चला जाता है और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तारीखें मिलती हैं, ताखीर मिलती है, उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बड़ा वेरी काइंड सरदार शमीम साहब, उन्होंने जो हमारा दरीना मुतालबा था ओवरसीज पाकिस्तानी का कि हमें अलग से एक बेंच दिया जाए हाई कोर्ट में, जो कि अलग बेंच जो है वो ओवरसीज के केसेस सुने। उन्होंने ना सिर्फ एक, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 3 जजेस जो हैं वो ओवरसीज के लिए मुख्तस कर दिए गए। तकरीब के मेजबान और लॉ फर्म के एमडी ज़रियाब जुबैर का कहना था कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के आने से मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। Alhamdulillah, with the work of the new government and with the proactiveness that's been produced within the organization, within government now, we can slowly see that there's some level of progression taking place. And inshallah, I think this is a platform that overseas Pakistanis today, I'd class it as a toothless tiger. And I'd say today, it's been given the power. मीडिया से बातचीत करते हुए शुरा ने तकरीब को इंतहाई मुफीद करार दिया। इस फंक्शन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अवेयरनेस देना था कि ओपीसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के क़याम का मकसद क्या है और ओपीसी का फंक्शन क्या है, ये किस तरह से आप लोगों के मसाइल हल करने में आपकी मदद करती है। कि ओवरसीज़ का कोई भी मसला हो हम इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर हल करेंगे। हम आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पोर्टल के ऊपर केस डाल के उसके बाद हमें वो रेफरेंस नंबर दे दें ताकि हम ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उसको फॉलो अप कर सकें। पूरे यूके में हमारे 32 मेंबर हैं, हर शहर में मौजूद हैं। आपके इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ कमीशन के जो जहाँ मौजूद है वो तरीके इंसाफ इमरान की क़यादत में उनके विज़न के मुताबिक हम उनके ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं हर सूरत में हल करेंगे। This function has been successful. The chairperson who attended today, Mr. Makhdoom Saab, was able to educate the community in terms of what the functions of OPC are and how it intends to help assist those overseas Pakistani nationals. Overseas Pakistanis Commission एक बेहतरीन इदारा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है। मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि इस इदारे के बारे में मालूमात हासिल करें और आपके जो भी मसाइल हैं, जैसे कि कोई ज़मीन का मसला हो या कोई सेफ्टी का मसला हो या कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस हों, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। Today's evening was very informative. Thanks to Zenith Lawyers, they organised an event with OPC to tell us what the sort of options are available to overseas Pakistanis who've got difficulties or either with Nadra cards or with land disputes, and they're here to help us. And I was really pleased to hear Mr. Chairman Makhdoom Saab today talk about some of the progress it's made. He's acknowledged there's a lot of work to be done, which is really important. But one message I would leave is, I think, yes, it's important to get the cases and deal with the cases, but I think it's also important to understand
the issues and maybe put in policies and processes in place that will make it easier for us overseas Pakistanis and Pakistanis to do more business in Pakistan, to be able to go there for tourism, have easy access visas, to get more people to see the beautiful Pakistan. ब्लैक बर्न में लोगों के इश्यूज हमने सुने थे, पहले भी हम आए थे, आज भी आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये प्रोग्राम रहा, लोगों के इश्यूज को हमने सुना और इंशाल्लाह ताला हमको पूरा भी करेंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि अब ओपीसी में बहुत से लोग खुशी से ये काम करना चाह रहे हैं। जुबैर भाई ने आज यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके ये साबित किया है, ये वाकई वो मुहब्बत वतन आदमी है। उसने लोगों के लिए, हालांकि वो खुद भी एक वकील है, लेकिन लोगों के लिए उसने फ्री काम करने का भी इरादा किया और लोगों को ये मतलब एडवांटेज वो दिया जाएगा। बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी सुनने को मिली हैं और ऑब्वियसली जो पहले हुकूमतें थी उनकी वजह से लोगों के एक्सपीरियंस बहुत गलत है, लेकिन अब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी मंजिल पे पहुंचेंगे, मेहनत करें तो फल भी मिलेगा ज़रूर। और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो इंशाल्लाह जब आप जाके पाकिस्तान देखेंगे ना तो आपको टोटली डिफरेंट नजर आएगा। आखिर में लॉ फर्म ने ओपीसी के अरकान को एजाजी सर्टिफिकेट दिए और शुरकाए तकरीब ने मिलकर केक भी काटा। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। मिस इंग्लैंड 2019 डॉक्टर भाषा मुखर्जी अगले माह लाहौर और गुजरात का दौरा करने के लिए तैयार। कहती हैं सिर्फ मिस इंग्लैंड ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर भी पाकिस्तान आ रही हूँ। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से प्यार है। तफसीलात आबद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की रिवायती मेहमान नवाजी गैर मुल्कियों को अपनी जानिब खींचने लगी। मिस इंग्लैंड डॉक्टर भाषा मुखर्जी भी अगले माह पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पुरजोश, जहां वो लाहौर और गुजरात के मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा करेंगी। मैं नेक्स्ट महीने पाकिस्तान विज़िट कर रही हूँ। मैं गुजरात और लाहौर के इलाकों को विज़िट करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग विद द टीम कॉल्ड ऑप्सा। और हम वहाँ पे बेसिकली रूरल कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ है पाकिस्तान में जिनको नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए पैसे नहीं होते हैं उनके पास, या फिर वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स क्लोज बाय नहीं, उनको फैसिलिटी नहीं होते बड़े बड़े ऑपरेशंस कराने के लिए, हम उन कम्युनिटीज़ के साथ काम करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग नॉट जस्ट एज मिस इंग्लैंड, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से भी जा रही हूँ। मैं इस वक्त बहुत ही अर्ली स्टेजेस में अपने करियर के, मैंने हाल ही में अपना जॉब शुरू किया हुआ है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं एक ऐसे ट्रिप में जा रही हूँ जिसमें मुझे इतना सारा एजुकेशन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। डॉक्टर भाषा मुखर्जी का कहना है उनके बहुत से पाकिस्तानी और कश्मीरी दोस्त हैं। उनके सपोर्ट और प्यार की बदौलत ही मिस इंग्लैंड मुंतखब हुई। भारतीय नयाद बरतानवी शहरी भाषा मुखर्जी का कहना था कि वो बतौर डॉक्टर रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अमली इक़दाम करना होंगे। नवाज शरीफ के साथ कोई डील होगी ना वो वापस पाकिस्तान जाएंगे। मुल्क चलाना इमरान खान के बस का काम नहीं, क्रिकेट खेलना और मुल्क चलाने में फ़र्क है। बार्सिलोना में हमारे नुमाइंदा शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा और हाउस ऑफ लॉर्ड के ताहियात मेंबर लॉर्ड नज़ीर मौजूद हैं। आइए हम उनकी कश्मीर की जो ताज़ा सूरत हाल है, 6 माह से वहाँ जारी लॉकडाउन और इस वक्त कश्मीर किस चीज़ का मुतकाज़ी है, ये पूछते हैं। जी लॉर्ड साहब। जुल्म की अंतहा है। ना तो वहाँ पे इंटरनेट है, वहाँ पे टेलीफोन कम्युनिकेशंस, व्हाट्सएप, ये जितनी चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड टेक करते हैं, हिंदुस्तान में जहाँ पे आईटी की फैसिलिटीज़ हर सिटीज़न के लिए मौजूद है, वहाँ पे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में नहीं है। फिर इसके अलावा जो बिज़नेस है वहाँ पे, इसकी वजह से यानी इंटरनेट की वजह से और जो लॉकडाउन है और जो कर्फ्यू है उसकी वजह से सेब की मार्केट इस साल, अखरोट की मार्केट इस साल, जो वहाँ के नॉर्मल ट्रेडिंग चीज़ें हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो लोगों को हुआ है। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये तो
चंद लोग होंगे जिनके पास 6 महीने के लिए खर्चा जमा है। मैं गुज़श्ता रोज़ से आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने मिलिट्री ट्रेनिंग का जिक्र किया है, तो क्या समझते हैं एक दफ़ा फिर जो आलमी नज़रें हैं वो हम पे एतराज़ नहीं उठाएंगी कि हम इससे पहले भी इस तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग तालिबान बनाए, कश्मीर में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ये मुतालबा जो है इस पे कोई एतराज़ उठे दुनिया की जानिब से, या आप इसे किस तरह से कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा मुतालबा है और ऐसे हमें करना चाहिए? बिल्कुल ये गलत तस्वर है। तालिबान का कोई तल्लक नहीं है। जो एक्चुअल स्टूडेंट्स को और जो नौजवान हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना 27 ममालिक के अंदर कंपलसरी है दुनिया में। तो पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं होगा। इसराइल में हो रहा है, वो अगर रशिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, बहुत सारे और ममालिक हैं जहाँ पे कंपलसरी है। जब आपका दुश्मन आपको कहता है, मैं बिपिन रावत की बात कर रहा हूँ, कि वो कह रहा है कि हम अपनी फ़ौज किसी वक्त आज़ाद कश्मीर में भेज सकते हैं, वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस वक़्त फिर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को ट्रेन होना चाहिए। तो फिर हर नौजवान को लड़ना सीखना होगा। दूसरी बात मैं समझता हूं कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में आज़ाद कश्मीर के अंदर तारीख़ कश्मीर की जो है वो ज़रूर पढ़ानी चाहिए। आरएसएस के बारे में, फैशिज़म के बारे में, अगर बरतानिया में आज भी हम हिटलर के बारे में, फैशिज़म के बारे में हम पढ़ाते हैं, तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर फिर फैशिस्ट जिन्होंने गांधी जी को मारा, जिनकी फैशिज़म की पॉलिसी की वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो जुल्म कर रहे हैं हमारी बहनों के साथ, हमारे बेटों के साथ। तो वो उन बच्चों को पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ ऐसे लिबरल होंगे कि ये आप जनाब रेडिकलाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी रेडिकलाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे नेशनलिज्म हो और अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए आपके अंदर कुव्वत हो। आप बड़े ज़ीरक इंसान हैं, बड़ी गहरी निगाह होती है पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर भी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और जो सियासी हालात हैं उन्हें किस नज़र से देखते हैं? क्या इमरान खान की जो हुकूमत है उसने जो वादे किए थे तब्दीली के, उसमें किस हद तक कामयाब हुई है, या क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है? कहाँ कहाँ गुंजाइश मौजूद है? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं। अब मैं क्रिटिसिज्म यहाँ स्पेन में बैठ के नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप मगर सच तो कहें ना जी। सच यही है कि वो बहुत सारे वादे जो मैं उस वक्त भी वार्निंग दे रहा था, बार बार कह रहा था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको रेज ना किया जाए, रियलिस्टिक रहना चाहिए। और आज उन्होंने तकरीबन साबित कर दिया है कि वो मैनेज करना, गवर्नेंस करना उनके बस का रोग नहीं है। क्रिकेट देखें, खेलना और चीज़ है, दूसरे भी नहीं सही करते थे। बाय द वे, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किया था, जरदारी साहब तो मस्त रहते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे, जो कुछ आप पिट पिट के वो भी अपने बिलावल साहब को प्रमोट करते थे, दूसरे जो है। तो ये भी अब अपने जो उनके रिश्तेदार नौजवान जो नए बने हैं उनको ही प्रमोट करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। मियां नवाज शरीफ वापस आएगा और डील की क्या सूरत हाल है, कोई हमें भी बता दिया करें। नहीं, डील नहीं होगी और नहीं वापस आएंगे। वो अभी आप देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मरियम बीबी भी जो है वो लंदन तशरीफ़ लाएं, क्योंकि मसला सीरियस है। वो चाहे इमरान खान साहब अगर अंडर प्रेशर कुछ आ भी जाए, वो आएगा नहीं वैसे, वो अगर आए भी तो दूसरे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो वापस आएँ और उसी तरीके से जिस तरह पहले गवर्नेंस करते थे। हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी और क्या इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे या कोई कौमी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं? मेरे ख्याल में कोई कौमी हुकूमत नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है ये 5 साल जितनी भी बुरी गवर्नेंस हो और है और होगी, लेकिन कोई और चेंज करके कौन किसको लाएंगे आप? है कौन आपके पास? तो ऐसे ही चलता रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है? बी पॉजिटिव और अपनी जिस कंट्री के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं वहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करें। इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो है वो इम्प्रूवमेंट करें। मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्पेन के अंदर हमारे लोग जो हैं वो बहुत बड़े कारोबार में, एक आदमी 20-20, 25-25 रेस्टोरेंट्स उनके चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लोगों ने लगा ली हैं। तो अपनी मेहनत भी करें, पैसे भी कमाएं, सोसाइटी के अंदर नाम भी पैदा करें और फिर यहाँ की जो सियासत है उसमें भी हिस्सा लें।
جی یہ تھے لارڈ نذیر جو جہاں اوورسیز پاکستانیوں کو بڑے عمدہ مشورے دے رہے تھے، وہیں کشمیر کی صورتحال اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں اپنی رائے سے نواز رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی کوالالمپور میں نمائندہ جاوید الرحمان سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں 5 اگست کے بھارتی اقدام سے پوری دنیا میں بھارت کی رسوائی ہوئی۔ مودی حکومت اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے کبھی بھی مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گی۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ثالثی کا نقطہ آغاز اقوام متحدہ کی قرارداد ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سر، کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے آپ اس وقت پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، آج ملیشیا میں تشریف فرما ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر تن مہاتیر محمد نے بہت سٹرانگ سٹینس لیا ہے کشمیر پہ، یو این او میں اور دوسرے جتنے بھی فورمز ہیں، اور اس حوالے سے انہیں انڈیا کی طرف سے بہت تنقید کا، یہاں تک کہ ان کی جو امپورٹس ہیں پام آئل کی انڈیا نے بند کر دی ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہاں کوالالمپور میں حاضر ہوا ہوں تاکہ ملیشیا کے وزیر اعظم جناب مہاتیر محمد صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں، پوری قوم کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ آپ نے درست کہا ہے کہ مہاتیر محمد صاحب نے جنرل اسمبلی میں بہت ہی اصولی موقف اختیار کیا، بہت ہی مضبوط موقف اختیار کیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست کو گزشتہ برس ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر قبضہ کیا تھا۔ تو اس جرأت مندانہ بیان کی وجہ سے اور مضبوط موقف کی وجہ سے ہندوستان کی طرف سے شدید رد عمل ہوا، اور ایک رد عمل یہ بھی تھا کہ انہوں نے ملیشیا کے اوپر معاشی پابندیاں عائد کی، لیکن ان پابندیوں کے باوجود ملیشیا ڈٹا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایکسیلنسی، امریکی صدر ٹرمپ نے 2 دفعہ ادا کیا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں کشمیر ایشو پہ بھارت اور پاکستان میں، اور مستقبل قریب میں وہ بھارت کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم اسے کس طرح کیپٹلائز کر سکتے ہیں ان کی اس آفر کو؟ صدر ٹرمپ نے ثالثی کا آفر کیا تھا اور ہم نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، پاکستان کے لوگ نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے لوگوں نے، بلکہ جو ہے سری نگر سے یہ آواز آئی تھی کہ ثالثی کی جو انہوں نے پیشکش کی ہے، جو ہمارے حریت کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ لیکن ان کی یہ پیشکش جو ہے ہندوستان نے فوری طور پر مسترد کر دی تھی۔ ان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ نریندر مودی نے کبھی کسی مرحلے پر صدر ٹرمپ سے درخواست نہیں کی تھی کہ وہ ثالثی کریں۔ تو دوسرے اس کے بعد جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ جو ہے ذرا محتاط ہو گئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان دونوں آمادہ ہوں تو تب وہ ثالثی کریں گے۔ ہندوستان کبھی آمادہ نہیں ہوگا، اس نے اپنے جرم چھپانے، اس نے اپنے قبضے کو مستقل کرنا ہے، اس نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو پامال کرنا ہے۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان کا پی ایس ایل کی ٹیموں اور کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ عامر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پی ایس ایل ہونا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ PSL 5th edition is coming up, and I wish all the players, all the teams, all the very best. You know, I hope that whole PSL is a great success as always, because I think it's great for Pakistan to see all these international players coming there, and I think it's just great for Pakistan really. So I wish them all the very best, and I can't wait for the PSL to begin because there's going to be some fantastic cricket going on. سعودی عرب میں پاکستانی خواتین کی تنظیم کی جانب سے رنگا رنگ ثقافتی میلہ سجایا گیا، جس میں مشرقی ملبوسات کے علاوہ بچوں کی جانب سے ریسائیکلڈ اشیاء بھی سب کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ خواتین کی تنظیم ایلیٹ کلب کی جانب سے ثقافتی میلہ سجایا گیا، جس میں پاکستانی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مشرقی ملبوسات کے علاوہ کاسمیٹکس، مہندی، جیولری اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ اس موقع پر خواتین نے پاکستانی کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے دید عزیب مشرقی ملبوسات پہن کر ان کی نمائش کی، جس پر 3 ماڈلز کو انعامات سے بھی نوازا۔ اس طریقے کی چیزیں کنٹینیو رہیں اور آگے اور سب لوگوں کو موقع ملے۔ It was a great platform to perform. ایونٹ میں بچوں کی جانب سے ریسائکلنگ اشیاء بھی رکھی گئی تھیں، جن پر بچوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔